We are learning C programming, and the most important topic is function. So what do you mean by function, Pranali? Any idea? I have not said. Okay, let me share my screen. अच्छा, शेयर किया हुआ है. Can you see my screen? Yes, sir. So function is a set of statements. Everyone, function is nothing but a set of statements. मतलब क्या? फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे. सिंपल. Functions are two types: library function and user defined function. Library function and user defined function. Now when I say library function, can you give me a name of one library function? Manish, any idea library function का नाम? सर printf. वेरी गुड. बेसिकली क्या काम करता है वो? टू प्रिंट. एंड To एस print क्यू आर टी sqrt क्या करता है वो? math.h क्या करता है वो? स्क्वायर रूट निकालता है सर. कैलकुलेट स्क्वायर रूट. गुड. So every function that is library function is defined in some header file. stdio.h. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? द फंक्शंस विच आर इनबिल्ट. इट्स इनबिल्ट. जस्ट अ मिनट. ओके. सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होता है? इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन. प्री डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है? एज द नेम, it is defined by user. Is there any library function for calculating the factorial, Pranali? Sir, fact. नहीं. Is there any library function to calculate prime number? No. Okay. So फैक्ट करके कोई लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है. ओके. वो तो आप इतनी बार यूज कर चुके हो वेरिएबल, तो आपको लगता है कि वो लाइब्रेरी फंक्शन है. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, आई विल मेक माय ओन फंक्शन. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? द बेनिफिट इज आई कैन यूज इट अगेन एंड अगेन इन डिफरेंट प्रोग्राम. मेरा खुद का फंक्शन बनाया तो मैं उसको दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकता हूं. सो हाउ टू डू दैट? तो फॉर दैट मैं सीधा एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने. एवरीवन, सो आई एम यूजिंग वन सॉफ्टवेयर कॉल्ड कोड ब्लॉक्स. You can use Turbo C++. Whenever you are using various kind of the compiler, it is possible that certain line of code will change. Like header file लिखने का स्टाइल चेंज हो सकता है, मेन लिखने का स्टाइल चेंज हो सकता है. That are the various way. So in I am using one program called function.
let me give my file name as user defined function, user def function. Okay, so as you know that you always starts with your hashtag include stdio.h. and since I am have to use using namespace, this I required in this kind of the software which is advanced one or which is new era के मैं बोल सकता हूँ, जहाँ पे वो लोग हेडर फाइल को .h से नहीं लिखते हैं. दिस इज द स्टाइल दे आर यूजिंग, सो वी आर फॉलोइंग दैट int main. Now what I want is to add two numbers. Everyone, I want to add two numbers and display addition of that two numbers. Now addition is quite easy. Everyone, addition is quite easy. C equal to A plus B, that's it. But we are not learning today addition of that two numbers. We are learning the addition of two numbers through functions, so that you get idea how to make functions. Write a program to add two numbers with help of user defined function. ठीक है, तो I declare a variable like int ab. Then as usual you are using printf, enter two numbers, and I got scanf. I am using %d and a. Manish, you are from which college? ओके, चलो मैंने दो नंबर लिया. ओके, नाउ हाउ टू कॉल अ फंक्शन. पहले फंक्शन बनाते कैसे है वो देखना है मुझे. सो टुडे आई एम मेकिंग माय फंक्शन. तो मैंने लिखा, जैसे मेन लिखा उसके जैसा मैंने मेरा फंक्शन लिखा, इंट ऐड, और मैंने लिखा इंट सी, and then c equal to a plus b, and then यहाँ पे मैंने लिखा let's say printf sum is %d comma c. All right. So this is the way I can define the function. Pranali, can you see that int main जैसा मैंने int add करके बनाया, Yes, sir. और अभी ये सबसे पहले कौन सा रन होगा? I have a doubt. मेरे पास दो फंक्शन है. कैन यू सी मेरे प्रोग्राम में अभी दो फंक्शंस है. सो मेन रन होगा पहले कि मेन रन होगा कि ऐड? First one. Main. मेन. ओके, फाइन. And what if Manish, can you see that? Manish आप हो? और मनीष है लेकिन आंसर नहीं दे रहा है. और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अभी क्या रन होगा पहले? So either you write main first or you write add first. It is always going to execute main first. Compile वो ये order में करता है from top to bottom, but execution always it starts from main. ये याद रखना. So I'll just shift my program and I'll put my all functions as it is. So compile भी इधर से होगा, run भी यही order में होगा. So let me compile, but then there is a one question mark.
कि सबसे पहले मेन में आया, आई टुक प्रिंट एफ स्कैन एफ, फिर ये ऐड अपने आप रन हो जाएगा कि उसको कॉल करना होगा? प्रणाली, एनी आइडिया? No, sir. ओके, सो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, याद रखना, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। एंड फंक्शन को कॉल करने के लिए आई हैव टू यूज अ नेम ऑफ द फंक्शन, मुझे उस फंक्शन का नाम लिखना है एंड सेमीकोलन देना है। हाउ टू कॉल फंक्शन, चलो मुझे कंपाइल करने दो। आई नो देर आर सम एरर्स एंड द एरर्स आर हियर। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, stdio करके कुछ नहीं है, वो बोल रहा है stdio.h है। अननोन टाइप यूजिंग, वो बोलता है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट मी डिलीट दैट, चेक करते हैं, C++ में मुझे ज़रूरत पड़ता था। सो नाउ एरर अनडिक्लेयर्ड ए, अनडिक्लेयर्ड बी। यहां पे वो बोल रहा है ए और बी डिक्लेयर नहीं किया आपने, तो ए बी डिक्लेयर किया आपने इन मेन। वेयर इज द ए एंड बी का डिक्लेरेशन पार्ट? इन मेन। तो ए बी का लाइफ कहां तक रहेगा प्रणाली? ए बी का लाइफ कहां तक रहेगा? तो ये जो हाईलाइटेड आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, यू कैन यूज ए एंड बी विद इन दैट कर्ली ब्रैकेट्स ओनली। Yes. यू कांट यूज ईयर इन एड, इसके बाहर डेड हो गया। दिस इज अ लक्ष्मण रेखा, ये वेरिएबल की ये लक्ष्मण रेखा है। यू कांट यूज आउटसाइड दैट, डेड हो गया आउटसाइड। इसके लिए उसने ए बी का एरर दिया। क्या करूं मैं वापिस? मैं इधर डिक्लेयर करूं तो वो तो वैल्यू चला गया, मेरा वैल्यू ऊपर है, मुझे चाहिए नीचे। ये प्रॉब्लम समझा क्या आपको? मनीष, आर यू देयर इन अ लेक्चर? यस सर। मनीष, ये प्रॉब्लम समझा क्या आपको? ए हाँ बी सर, का समझा। वैल्यू मेरे पास मेन में है और मुझे हाँ। यूज कहां करना है? ऐड फंक्शन। ऐड में। लेकिन मैं इसके बाहर यूज नहीं कर सकता। ओके, हाँ। तो इसका सल्यूशन ये लोग ने दिया कि जब भी आप ऐड को कॉल करोगे उसके साथ ए और बी को क्या करो? पास करो। जब भी आप ए और बी को पास करोगे तो यहाँ पे उसको कैच करना पड़ेगा। तो मुझे इंट ए लिखना है, इंट बी लिखना है। म्यूट हो जाना प्लीज। यस, तो इंट ए इंट बी लिखेंगे। नाउ व्हाई इंट एवरीवन? व्हाई इंट? बिकॉज ए का डेटा टाइप इंट है। यू वांट टू राइट इट डाउन इंट एक्स, इंट वाई, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का वैल्यू इज कम स्टोर्ड इन एक्स, बी का वैल्यू इज स्टोर्ड इन वाई। बट आपको कंपल्सरी लिखना है इंट। तो मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं ए और बी लिखता हूं। नाउ आई कंपाइल, तो आपने देखा वो एरर चला गया। ओके, एरर चला गया। वो एंटर टू नंबर्स 10 20। I am waiting for some time so that you can get a broadcast and you can view what the screen is showing right now. The sum is 30. Okay. So answer is sum is 30. So now what exactly function ने किया क्या? फंक्शन ने खाली फॉर्मूला लिखा एंड उसके अंदर मैंने सेपरेट कोड लिखा।
So this code I can use in future. Now just to understand कि या तो मैं ये इधर डिस्प्ले करूं, सर हाँ सर ये जो इंट ऐड है ये इंट मेन का फंक्शन है, पार्ट है क्या? हाँ, क्या क्या क्या? ये इंट मेन, ये इंट ऐड है, ये इंट ऐड है वो इंट मेन का कोई पार्ट है क्या? नहीं, वो प्रोग्राम का पार्ट है। इस बार अच्छा, अभी तक आप प्रोग्राम में क्या कर रहे थे? पूरा का पूरा प्रोग्राम किस में लिख रहे थे? इंट मेन। मेन। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मेरे प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक मेन और दूसरा ऐड। ऐड। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। एक होता हाँ है कि नया नया कॉलेज चालू हुआ, आपने क्या किया, दो सब्जेक्ट्स चालू किए कॉलेज में, तो एक ही नोटबुक में दोनों लिख रहे हो, ओके। हाँ हाँ सर। फिर एक बार एक प्रोफेसर ने पूछा कि वो मैथ्स का फॉर्मूला कौन सा है, बताओ मुझे। तो आप मैथ्स का फॉर्मूला ढूंढ रहे हो पूरी बुक में, 160 पेज हाँ, का बुक, उसमें से 60 पेजेस आपने लिखा हुआ है, एंड आपको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि दो सब्जेक्ट का मिक्सचर है। एक ही बनाया। हाँ, फिर आपने डिसाइड किया कि यार अभी तो मेरा सिलेबस बहुत आगे चलना चालू हो गया है, चलो दो अलग अलग बनाते हैं। तो मैथ्स का मैथ्स में ढूंढेंगे और सी प्रोग्रामिंग का सी प्रोग्रामिंग में ढूंढेंगे। आर यू गेटिंग मी? समझा सर। तो एग्जैक्टली मैं वो कर रहा हूं कि अभी मेरा प्रोग्राम बढ़ रहा है, तो मैंने दो फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। दो क्या, मैं चार फंक्शंस में भी डिवाइड कर सकता हूं। लेकिन जैसे मैंने दो फंक्शंस बनाया, मनीष को क्वेश्चन आया कि सर पहले कौन सा रन होगा। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि पहले तो मेन ही रन होगा, ओके, पहले तो मेन ही रन होगा। तो फिर ऐड कैसे कॉल हो, ऐड कैसे रन होगा? तो ऐड को कॉल करना है आपको। यू विल कॉल ऐड फंक्शन फ्रॉम मेन, यू विल कॉल ऐड फंक्शन फ्रॉम मेन। तो आप ऐड को कॉल करोगे। तो आपने कॉल किया, ये देखो कॉल किया। तो अभी मैं यहां एक नया कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करता हूं, रिटर्न एंड सी। म्यूट हो जाना आप प्लीज। सो सी रिटर्न किया, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न एग्जैक्टली वहां चला जाएगा जहां पे आपने कॉल किया था, z में स्टोर हो गया। तो लेट्स यहां पे मैं z में डिक्लेयर करूं, और मैं यहां पे इसमें z में डिस्प्ले कर देता हूं, ओके। एवरीवन, let's understand. So I have a two numbers as an input. Then I am calling a add function. Add function ने कुछ भी कर लिया, ऐड कर लिया, मैंने रिटर्न किया, तो z में स्टोर हो गया, और फिर वो z को डिस्प्ले किया। तो मैंने नया कीवर्ड सीखा, रिटर्न। प्रणाली रिटर्न क्या करेगा? What return will do, Pranali? Return Sir, it will return this. value. Return the value, right? But वो वैल्यू किधर रिटर्न होगा? तो मेन में जो लाइन से आपने कॉल किया था उधर रिटर्न होगा। सो z में रिटर्न होगा वैल्यू। ऑल राइट, लेट्स रन, चेक करते हैं रन होता है कि नहीं। तो उसने कुछ एरर दिया। अच्छा, ये मैंने y रखा था, b रखना है। लेट मी कंपाइल अगेन एंड डीबग अगेन एंड एग्जीक्यूट अगेन। Ten is my first number, 88 is my second number, and this is 98.
So 98 is my sum. So here I got the answer. Everyone. So now मुझे दो नंबर का एडिशन तो मिल गया, एक और कंपोनेंट मिसिंग है जो आप टर्बो C++ में यूज करोगे तो आपको एरर देगा। मेन के पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके प्रोग्राम में आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो और उसके अंदर कितनी वैल्यूज है। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। टाइम ना पूछ तो वाईफाई वापरू कि नहीं वापरू ये पूछू तो। ऑल राइट, तो टोटल कितनी बार मैंने ऐड लिखा है प्रणाली? हाउ मेनी टाइम्स मैंने ऐड लिखा है पूरे प्रोग्राम में? 3 times. राइट। तो सबसे पहले हमने कौन सा लिखा? ये, उसको क्या बोलूं मैं? फंक्शन कॉलिंग। फिर इसको क्या बोलूं मनीष? फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन। और इसको क्या बोलूं मैं? फंक्शन प्रोटोटाइप। तो आपको ये पूरा प्रोग्राम कॉपी करना है। फिर मैं अभी आपको पूछूंगा कि मुझे एवरेज निकालना है तो क्या चेंजेस करूं, ओके? और हर एक स्टेटमेंट लिखने का रीजन क्या है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू कॉपी प्रोग्राम। ऊपर टाइटल दिया हुआ है मैंने, नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड सेकेंड टाइम कि हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। 3 बार ऐड लिखा, उसका मीनिंग क्या है। ओके, लेट्स कॉपी। जस्ट अ मिनट। वाईफाई वापरू कि ना वापरू? मारू वापर ना। Mic off, sir. हाँ, काले तो अच्छा કોને ખાવું છું વડાપાઉં? ક્યારે? દીદી વાળવાની નથી of course. કેમ? એક દિવસ આગળ પાછળ ના ખાઈ લેવાય? બર્થડે જન્મ દિવસ તમે બદલી ના શકો. ચલ અત્યારે ડિસ્કસ નથી કરું, મારો લેક્ચર છે. What is this? Mom, अगर ये मोटी को ना I don't want you to जा बाहर. I don't care नहीं. जो तो तारी लैंग्वेज को सुधार यार, वो प्रॉब्लम्स हो जाता है. ओके. तो जो તારો બર્થડે આજે છે, અગર કોઈ તને કાલે બોલે તો ને એટલું આમ ખુશી ના થશે કે તમે એ દિવસે થતી હતી. તારો 22 તારીખે બર્થડે છે. 21 જ. અરે કિડિંગ મને ના કરો. ખબર છે. તો પેલો તો પેલો બેટર ને પછી વિશ કરે પણ ખૂબ અજીબ લાગે. એક દિવસ પછી મને અજીબ લાગે. મારો બર્થડે કાલે બર્થડે આજે હું સેલિબ્રેટ કરું. શું મને જેટલી પણ હવા મિડલ ક્લાસ તમે આ તિથિ છે ને એને પોસ્ટપોન કરી લો ને. પોસ્ટપોન ના કરાય. ઠીક છે બધી વસ્તુ પછી કરો ને જોઈ લેશું. નહીં થાય પણ તું તારી લેંગ્વેજ પર કંટ્રોલ રાખ. તિથિ સાથે મોટી બનાવ તો પણ તમે એને પોસ્ટપોન કરી દો. આમ મંડે વાળા ટ્યુઝડે પોસ્ટપોન કરી દો. મમ્મી પાછી રાતે જઈને ચીડાવવા માટે બોલ્યો ને કે કાલે મારો બર્થડે છે.
और सांस लो, चलो आप इधर